Yesterday we discussed about what is server, what is client, what is the importance of Windows Server in each and every environment. Okay, so before going into this, how many of you are working professional and how many of you are freshers? You can just type in the chat as fresher or working or okay. Okay, so see the people who are working, uh good. So let me give you one basic idea about the career opportunities and the career planning, because this is not only a book that you need to read, right? All basically the goal of our training and whatsoever we are going to learn in this is basically we want to make ourselves to be able to um, got a job, right? That is our basic goal. So I have seen many people asking me that they are from other professionals or other profession, or they are freshers, right? Are they still have a doubt in them that whether they can get a job in IT or not, right? So let me tell you my experience so that you can get a good boost, right? So that you can be confident that yes, you can do this. So uh, I completed my 12th, and after that I started as a desktop engineer मतलब जो लोग computers repair करते हैं. I was not in the software, but I was in the electronics. So I'm a trained electronics engineer. So electronics repairing ये सारी चीजें I was very good, और computer hardware में I was very good, I would say. So I worked for almost 2 or 3 years in that. After that, I joined a company, and मतलब I started my career with HCL as a desktop engineer. तो मैं लोगों के घर पे जाके उनके कंप्यूटर्स और उनके लैपटॉप्स ठीक करता होता था. ठीक है. सो HCL ने अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर बनाना बंद कर दिए. देन आई मूव्ड टू सम अदर प्रोफेशन, और मैंने लोकल आईटी मतलब एक कंपनी ज्वाइन करी एज अ लोकल आईटी, और वहां पे मैं सिर्फ हार्डवेयर को छोड़ के मतलब जनरली अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज जब हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, ठीक है, किसी की रैम ठीक करनी, किसी मतलब रैम रिप्लेस करनी, मदरबोर्ड रिप्लेस करना, एसएमपीएस रिप्लेस करना, ये सारी चीजें. लेकिन उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो जब लोकल आईटी बना तो मतलब वहां पे आपको हर चीज देखनी पड़ती है, राइट? यू हैव टू मैनेज देयर सर्वर एज वेल, उनकी एप्लीकेशंस मैनेज करनी पड़ती है, कोई कंप्यूटर का पासवर्ड रीसेट करना है, वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं. आफ्टर दैट आई वर्कड एज अ टेक्निकल सपोर्ट. वहां पे मैं यूएस क्लाइंट्स को जो वो सपोर्ट करता होता था, एंड दैट वाज कम्प्लीटली रिमोट सपोर्ट. तो वहां पे हार्डवेयर का कोई रोल नहीं रह जाता, इट्स कम्प्लीटली आपको एप्लीकेशन सपोर्ट देनी है. देन आई मूव्ड टू सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, जहाँ पे मैंने बाकी सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सारी चीजें मैंने करना शुरू करी, राइट? सो इफ यू टॉक माय एक्सपीरियंस, तो मैंने भी ऐसा बहुत अलग से प्रोफेशन से शुरू किया, एंड आई एम नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन. ठीक है. सो देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू learn and I have to move forward, right? My end goal is not to become a infra admin only. I want to become a cloud engineer or cloud architect in future years, right? So this is a basic thing that if I can do this, you all can do this. मैंने बीटेक नहीं करी है किसी कॉलेज से. इवन आई हैवंट गॉन टू एनी कॉलेज. मैंने जितनी भी एजुकेशन आफ्टर 12th करी है वो सारी की सारी डिस्टेंस पे करी है. ठीक है. जस्ट बिकॉज कंपनीज आस्क फॉर द सर्टिफिकेट, दे डोंट आस्क कि आपने वहां पे क्या पढ़ा था. ऑल यू नीड इज द स्किल, क्योंकि उन लोगों को आपसे काम चाहिए जो उनको रिक्वायर्ड है. ठीक है. दैट सर्टिफिकेट्स और दैट डिग्री इज जस्ट दैट यू हैव लर्नड समथिंग. ठीक है. सो just don't put a question on yourself whether you can do this or you cannot. Learn the things, definitely you can do this. Getting my point? And the reason why I'm saying this, you shouldn't have any question on yourself or in your caliber that you can't do this. You can. The thing is, you have to learn the things the way it should be.
Thank you, Sandesh. I think you will be learning a lot. So let's start with our today's topic. It was just an insight. So let's start our topic for today, and that topic is the introduction for Windows Server. Okay, so let me just maximize this, and let me share it. Okay, all right. So let me see if I can annotate. Yeah, I can. All right. So let me tell you, before the recent changes done by Microsoft, MCSA was focused on all the technologies inside Windows Server. But now Microsoft has realized कि सारे का सारा Windows Server पढ़ने से better है कि आप किसी particular role को पढ़ो. That role could be DNS, could be Hyper-V, could be Active Directory, could be Federation Services, could be File Server, or could be remote services. So आप एक particular role पे dependent हो, क्योंकि companies को actual में role based users चाहिए होते हैं, और that is called role based administration. और role जो आपकी job होगी वो basically role based होंगी. It's not कि आप Windows Server certified हो. You need, अब Windows Server certified का मतलब तो उसको सब कुछ आता होगा, है ना? But that's not the case in most scenario. So before getting into it, let's understand the Windows Server, because our end goal is Windows Server. We have to learn the technologies within the Windows Server. So if I talk about Windows Server, I have to understand the operating systems of Windows. So Windows is basically a product or operating system family introduced by Microsoft back in 1995, or I think 1980s, right? Before that it was OS2 and used to be DOS operating system, or used to be managed for IBM only. But after that Microsoft introduced their own operating system called Windows. There was many operating system versions, but we start our journey from 1996 because Microsoft's core product, which we still use in these days, was introduced in 1996. ठीक है. तो बोलने का मतलब क्या है कि इससे पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ठीक है, वो आज की डेट में ऑब्सोलीट है. मींस उनकी जो टेक्नोलॉजीज थी वो आज की डेट में यूज नहीं होती है. तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, दैट टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम 1996, एंड देयर वाज अ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड विंडोज NT 4.0. ठीक है. सो विंडोज NT 4.0 जो है वो पहला ऑपरेटिंग था जिसके अंदर जो वो आज की डेट के जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जैसे NTFS, राइट, जो ऑथेंटिकेशन के लिए NTLM ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होती थी, एंड दे आर स्टिल कैरिड ऑन टिल डेट. I'm not sure about Windows 11 if they have made some changes which I'm not aware of, or I'm sure they haven't made any major changes in it. But till Windows 10 they are using same sort of things. Kerberos authentication, NTLM authentication, all those things, or NTFS file system, all these things are basically carried forward till from Windows NT 4.0. So that was the first operating system, and that is why we have started from this. मैंने इसके अंदर कोई और नहीं मेंशन किया है 95 98 कुछ भी. I have mentioned 90 NT 4.0. It is Windows, it's 2000, right? So Windows, अब आप देखोगे, so between 1996 and 2000 there was, if you distribute or basically distinguish those operating system, you will see there is a desktop operating system and there is a server operating system as well. So Microsoft always release both of these operating system at the same time, almost at the same time, right? You will get to know about this. तो अगर वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली दे हैव टू लॉन्च सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल, बिकॉज इफ यू हैव टू मैनेज दिस डेस्कटॉप, you have to manage that using server operating system. So they will introduce this as well. So in 1996, if they launched Windows NT 4.0 workstation, that was a desktop client operating system, they introduced Windows NT 4.0 server as well, right? So
That was client and that was server at that time. In 2001, they introduced Windows XP. You all know about this. I'm not sure if you know about this, but you know Windows XP. Mostly. आप सबको पता होगा विंडोज एक्सपी के बारे में, अगर नहीं पता किसी को सो आई एम नॉट श्योर, बट विंडोज एक्सपी तो ऑलमोस्ट सबको पता है। ठीक है। सो विंडोज एक्सपी के साथ एक विंडोज सर्वर भी आया था, एंड दैट विंडोज सर्वर वाज विंडोज सर्वर 2003। If I talk about my experience, I have never seen this Windows NT workstation or Windows NT 4.0 or any other server in any environment in my experience, because I'm not that old, right? I have started my career in 2009 or 2010, 2010, right? So at that time, Windows 7 was in the market, but few of users were using Windows XP as well. So I am the guy who started his career with Windows Server 2008 R2, but still there were Windows Server 2003 as well. So I know about this, right? Now this server is obsolete. It's not in use anymore. Windows XP is also not in the market because it's like ये बाबा आदम के जमाने का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो इट्स नॉट इन यूज। इसके अंदर एप्लीकेशंस भी नहीं आती आज की डेट में। अगर आप कुछ नई सी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगी। सो विंडोज एक्सपी इज लाइक ये यूज ही नहीं होती कहीं पे। Then in Windows, in year 2006 and 2008, Microsoft introduced Windows Vista. To be honest, they were trying to copy something from Apple, but that was completely a disaster. It is I would say it is the biggest disaster in operating system done by Microsoft. So it was like a worst operating system. Nobody actually liked Windows Vista. It was good to see, but it was the disaster. Then with Windows Vista, they had Windows Server 2008. अगर आप विंडोज विस्टा को इंस्टॉल करते हो और विंडोज सर्वर 2008 को इंस्टॉल करते हो ना, तो लॉगिन आपको सेम ही दिखता है। मतलब आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि जो जनरल यूजर होता है, जिसको सर्वर और क्लाइंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं चलता कि विंडोज विस्टा है या विंडोज सर्वर 2008 है। वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। जब आप उसके अंदर काम करना शुरू करोगे, तब आपको रियलाइज होगा अरे ये तो विंडोज विस्टा का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सर्वर है। ठीक है। अदरवाइज दे बोथ लुक द सेम। देन इन 2009, Microsoft actually, learned from mistake. You see, within a year, they ditched this Windows Vista and they introduced a new operating system called Windows 7. You can say this Windows Vista was like a experiment. This experiment got failed. They learned from the mistakes and they introduced new operating system called Windows 7. And to be honest, Windows 7 is the most successful operating system in the history. No other operating system has that capability to meet the capabilities of Windows 7. Still, we are moving towards Windows 11, but still people actually love Windows 7, to be honest. So with Windows 7, they had Windows Server 2008 R2. There were major changes in Windows Server 2008 R2, but it was introduced with Windows 7. Same as it is, as I said, if you install Windows 7 or Windows Server 2008 R2, both of them looks the same, right? Then in 2012, I don't know what happened, but Microsoft introduced Windows 8. It was actually the same as Windows Vista, right? It was like the same. Microsoft tried to make the operating system touch capable, right? And it was a mistake. And then they have to ditch this as well. So with Windows 8, they have introduced Windows Server to 2012 as well. Again, if Windows 8 was disaster, Windows Server 2012 server was also a disaster. Then within a year, Microsoft realized and they introduced Windows 8.1. It was a good operating system, not bad, but still it was not up to the mark. But the operating system Windows Server 2012 R2 was the best operating system in server history. Windows Server 2008 R2 was a good operating system, but it was using the old strategies or old technologies. With Windows Server 2008 R2, the stability was equal to 2008 R2, but the features was like Windows Server 2012. So what Microsoft actually tried to do with Windows Server 12 was done with Windows Server 2012 R2, and it was as much as stable as Windows Server 2008 R2.
इन माई एक्सपीरियंस मैंने अब तक जितने भी सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं उनमें से 2012 R2 सर्वर जो वो सबसे बेस्ट है। इट विल बी ऑब्सोलीट इनटू द 2023। 2023 के बाद आपको विंडोज सर्वर 2012 R2 देखने को नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विल एंड सपोर्ट फॉर इट। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर 10 years. So if it was introduced in 2013, so it will end on 2023. माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बोला नहीं है कि ये कब करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है 10 साल का जो सर्विसिंग जो मॉडल माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है, सो इट विल बी देयर और इट विल बी ऑब्सोलीट इन विंडोज 2023, राइट। सो in 2015 Microsoft introduced Windows 10. Initially Windows 10 was like a disaster again. It was full of bugs, and same goes Windows Server 2016 as well. इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। इफ आई टॉक अबाउट विंडोज 7, विंडोज 8.1 एंड विंडोज सर्वर 2012, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, बट ये सिमिलैरिटीज और ज्यादा बेटर हो गई विंडोज 10 और विंडोज सर्वर 2016 में। विंडोज 10 और विंडोज सर्वर 2016 के वॉलपेपर तक सेम है, मतलब इतनी सिमिलर हैं ये दोनों कि इनके वॉलपेपर्स तक सेम है। मतलब यू हार्डली कैन नोटिस कि विंडोज सर्वर 2016 है या विंडोज 10 की मशीन है, इफ यू हैवंट कॉन्फ़िगर्ड इट कि इसका वॉलपेपर वगैरह चेंज करके या ऐसा कुछ ना किया हो। दे बोथ लुक्स एग्जैक्टली द सेम। Same goes with Microsoft actually promised back in I think in 2017 or 2016 कि Windows 10 will be the last operating system for Microsoft, and they actually keep updating Windows 10. पहले क्या होता था, they used to launch service packs, right, or a new operating system. Windows 10 के केस में ऐसा नहीं हुआ। They used to they actually used a different strategy. They started deploying this version upgrades. These are called cumulative updates, or you can say these are basically updates, major updates, right? Each 6 months, within 6 months, they actually introduce a new version for the Windows 10. Your Windows 10 will remain Windows 10, but within that Windows 10, you will have a different version. If you have a Windows 10 computer, you can check what version you have. Is it, ये तो देखो इनमें से तो ये सारे के सारे यूज नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी ओल्ड, 2018 से पहले के हैं ये। आफ्टर 2018 you have 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, ठीक है, then we have 21H1, और this is the latest version we have, 21H1, right? So you can check these. How now, you may ask how to check this version in Windows 10. So this is very simple. Open run on your system and type winver. Okay, सर this is अभी का simple जो command. लेटेस्ट वर्जन है वो सर 21H2 है ना सर? नहीं अभी आया नहीं, I guess. सर मेरा तो अपडेट आ गया सर 21H2। Maybe, but विंडोज 11 right, सर। Windows 11. हाँ जी सर। No, so I'm not talking about Windows 11, right? I'm talking about Windows 10. So अच्छा Windows 10 के लिए 21H1 ही है, as long as I know, क्योंकि मेरा सिस्टम जो मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। So this is the version. If you check Windows 10 latest world version build, यहाँ पे build भी आपको दिखेगी, so this build is very important, right? So this is how you can check your Windows version. Okay, so let me see if I can okay it. All right, so getting this, what actually I'm trying to say, so this is our history of your operating systems. So the latest or the current version of Windows Server is Windows Server 2019. Rohit, the command is winver. Let me ping it to everyone. I think this is shared by Saurabh as well, but you can just go to run and you can type winver, right? And this command will show you what version of operating system you are running. It's not only capable or applicable for Windows 10, it is applicable for all the version of operating system. चाहे वो Windows XP ही क्यों ना हो, ठीक है? It will tell you the build, the version of operating system, all the information about it. Servers के केस में भी चलता है ये, okay? So this is about the history,
right? The current version of Windows Server is 2019. Now this is the real environment. Now if I talk about the future, now Microsoft has introduced Windows 11 just a month back. Even it's not a month, few days back, I would say weeks or 2 weeks back, they have introduced they have launched Windows 11. देखो इसकी जो क्या बोलते हैं उसको जो रूमर्स थे वो तो बहुत पहले से चल रहे थे, आई थिंक पिछले 3-4 मंथ से, या उससे भी पहले से, आई थिंक अप्रैल से, ठीक है, कि विंडोज 11 आने वाली है। बट एक्चुअल में ये लॉन्च हुई थी आई थिंक 4 अक्टूबर को, ठीक है। सो नाउ वी हैव ऑफिशियली विंडोज 11 अवेलेबल फॉर आवर एनवायरनमेंट। नाउ विद विंडोज 11 आई नाउ यू सी कि विंडोज 11 तो आ गई है, अब मैं बोल रहा हूँ कि विंडोज सर्वर भी आता है विंडोज के साथ, ठीक है। सो नाउ माइक्रोसॉफ्ट विल इंट्रोड्यूस विंडोज सर्वर 2022। सो दिस इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लोग बोलेंगे कि एमसीएसए तो है नहीं, अगर एमसीएसए नहीं है तो ये सर्वर क्यों लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। एमसीएसए विल बी देयर, you will be required by the companies, right? And you are supposed to support these um, server operating systems. So Windows 11 is launched, but I think it is just in the initial phase. You will see a lot of bugs in Windows 11. Microsoft will keep improving the things in Windows 11, and after improving those things, Windows Server 2022 will be there, and I hopefully this will be launched in March or April 2022. I'm not sure the exact time, but it's just my um, you know expectations कि इस टाइम पे आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो जो सेकंड क्वार्टर होता है या फर्स्ट क्वार्टर होता है उस टाइम पे लॉन्च करता है, और जो ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये मोस्टली जो वो थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च होते हैं। सो अगर मैं विंडोज 11 की बात करूं तो इट इज लॉन्च्ड इन फोर्थ क्वार्टर, राइट? सो same goes Windows servers, it will be launched, I'm expecting it to be launched in first quarter or in second quarter of 2022, right? ये टेक्निकल प्रीव्यू में अभी भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू ट्राई दिस यू कैन गो टू माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर एंड यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन ट्राई दिस, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज दिस एंड यू कैन सी कि ये कितना अच्छा है। बट इफ यू हैवंट यूज्ड विंडोज सर्वर अर्लियर सो यू वोंट नोटिस द डिफरेंस। सो I myself haven't tried this any time, this as of now. I don't get the time actually. I am trying, I'm waiting to try it, but there are things. So let's discuss Windows Server currently in use. तो ये जो 3 सर्वर हैं ये अभी यूज पे हैं, ठीक है। आप जब एनवायरनमेंट में किसी कंपनी में सपोर्ट देने जाओगे सो यू विल सी विंडोज सर्वर 2012 R2 इन यूज, 2016 इन यूज एंड 2019 इन यूज। 2016 आपको कम देखने को मिलेंगे, 2019 और 2012 आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2016 में बग्स थे, ठीक है। आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस कि विंडोज सर्वर 2016 बहुत बेकार था, ठीक है। सो पीपल हु एक्चुअली बाय मिस्टेक अपग्रेडेड टू विंडोज सर्वर 2016, देखो विंडोज के क्लाइंट के केसेस में तो क्या होता है, अगर आपने विंडोज 10 का लाइसेंस अगर आपके पास है सो यू कैन फ्रीली अपग्रेड टू विंडोज 11। सेम हैपेंड इफ आपके पास विंडोज 7 का लाइसेंस था तो आप विंडोज 10 पे फ्री अपग्रेड कर सकते थे। सेम गोज विंडोज 8.1 एज वेल। सर्वर के केस में ऐसा नहीं होता। सर्वर के केस में अगर आपका लाइसेंस अगर 2016 का है तो वो 2016 का ही रहेगा, यू कांट यूज दैट लाइसेंस फॉर विंडोज सर्वर 2019। तो अगर आपने अपग्रेड कर दिया है 2016 के लिए सो यू हैव टू डील विद इट, ठीक है। बट पीपल हु एक्चुअली वेट फॉर इट, जिनको पता था 2012 अभी चल रहा है, दे डोंट नीड टू अपग्रेड, ठीक है। सो अभी वो अपग्रेड करेंगे तो या तो वो डायरेक्टली 2022 पे जाएंगे या फिर वो 2019 पे आएंगे। दे डोंट एक्चुअली हैव टू यूज दिस विंडोज सर्वर 2016, ठीक है, बिकॉज यू हैव लेटेस्ट वर्जन। इसका रीजन क्या है? इफ यू वांट टू अपग्रेड योर सर्वर राइट नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप अभी अपग्रेड करना चाहते हो, what will happen? This Windows Server 2016 will end in 2025, right? Or 2026. Expect that it will be end by 26. मतलब अगर आप आज इसको इंस्टॉल करते हो तो you have only 5 years to use it. But if you install Windows Server 2019, लाइसेंस तो सेम ही है ना, आपने जितने पैसे 2016 के लिए पे करने हैं उतने 19 के लिए भी पे करने हैं,
अगर आप 2019 पे जाते हो तो it will be supported till 2029, so you have 8 years. So which one is the beneficial for you? Obviously 2019, right? And if you still are running Windows 2012 R2 and it is in production or it is in use for 2023, so you will wait. You won't actually upgrade to 2019. You can wait for a year and you can wait ki 2022 aa jaye. So whenever they launch 2022, you can directly upgrade to 2022 or migrate to it, and your server will be valid till 2013 2032. Means you will have like 10 years. So this is like your planning how you want to upgrade or maintain your infrastructure, but that comes when you have like a few years of experience. तब आप ये चीजें decide कर सकते हो. Being a fresher, nobody will be asking you to do these things, and you are not supposed to do these things, right? ये हमेशा प्रोडक्ट्स या सर्वर्स को अपग्रेड करना या माइग्रेट करना प्रोजेक्ट्स होते हैं. दे आर नॉट काउंट एज अ डे टू डे टास्क. ठीक है, कोई भी कंपनी रोज के रोज सर्वर अपग्रेड नहीं करती है, टू बी ऑनेस्ट. ये कभी कभार 3-4 साल में एक बार होता है. ठीक है. सो इफ यू आर वर्किंग फॉर क्लाइंट्स, जहां पे आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो आपको ज्यादा चांसेस है मिलने के लिए. और अगर आप सेम कंपनी में काम करते हो, सो यू विल हैव लेस चांसेस टू डू दिस. Yes, Ashok. To upgrade to new version of operating system, you have to pay. Windows Server के केस में बहुत hefty amount of license fee pay करनी पड़ती है. We will discuss this now. Now we have understood the version of operating system. Now understand the licensing. How you can get this. So Windows Server 2019, we will focus our let's see. Yes. So we will focus our topics on Windows Server 2019. We are not going to discuss any other server except Windows Server 2012 R2 in some cases, because while we are doing few practicals, Windows Server 2012 R2 will be helpful for us, right? But mostly our practicals will be done on Windows Server 2019. Saurabh, I couldn't understand your question. You are talking about HCL company for what? See, you cannot say कि किसी company की requirement क्या है. It's not the requirement of company. It's a requirement of job. If you are applying for a job, there must be a JD on it. JD means job description. So you have to read that job description. Within that job description, you will get to know कि आपको कौन कौन सी technologies आनी चाहिए. आपको AD आनी चाहिए, RDS आना चाहिए, Exchange आना चाहिए, वो सारी चीजें. ठीक है. So it all will be mentioned in JD only. ठीक है. So let's focus again on our topic, which is Windows Server 2019. So this is the version of operating system we are going to use. Now within every version of operating system, you will have additions of it. So addition is different thing and a version is different thing. Windows 10 itself has a different additions. Do you know this? Windows 10 के भी अलग-अलग additions आते हैं. What type of what I understand by additions? Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Workstation. There are 4 different editions of Windows 10. So Workstation has highest license fee. If you want to use Workstation or Enterprise, they will cost you a lot. But if you are going for Windows Pro, it will cost you a less amount, maybe few thousand rupees, maybe 4,000 or 5,000 rupees only, right? And if you are going for Home Edition, it will cost you like 1,000 rupees maybe. It is very cheap. Generally, if you get any laptop from any vendor, maybe Dell from or maybe HP or maybe Lenovo, whatsoever, Home Edition will be always there. आपको सिर्फ मुझे लगता है 500 या 1000 रुपए का डिफरेंस होता है और you can get Home Edition or licensed edition with your computer. But if you want Pro, then it will cost you more. So what is the difference? Why would I select Pro rather than Home?
So home is basically meant to be used as a personal system. Pro is meant to be used in companies or in professional environment. So what that means, with home you will have few features with limited functionalities. Let's say you will not have functionalities for Hyper-V. You cannot use Hyper-V with home edition. You cannot join home computer to domain. You cannot manage, simple in simple word, you cannot manage the home editions of Windows 10 using server. You can't do that. If you want to use or manage your Windows 10 machines from domain or from server, you need to have Windows 10 Pro at least. If you have Windows 10 Enterprise, there is no difference between the features. Only thing is, with Enterprise, you will have like bundle license. You don't have to purchase single license. With Enterprise, all your license can be managed from a portal, right? This is like licensing things, how you manage the license. So this is the difference or different editions of Windows 10. Same goes with your Windows Server as well, but you don't have that many of editions and that much of complication. With Windows Server, you have three different editions. One is Windows Server Essential. It used to be a lot of mess with earlier versions of operating system. I can remember of in Windows Server 2008 R2, they had like different versions or editions of Windows Server, and that was very complicated. ठीक है, किस वाले के साथ क्या क्या किया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. उन वहां पे आता था आपका होम एंड बिजनेस सर्वर, पता नहीं क्या क्या ऐसे आते थे. सो दे हैव कीप दीज थिंग्स, आई थिंक 5 डिफरेंट एडिशंस आते थे विंडोज सर्वर 2008 R2 के साथ. नाउ दे हैव मेड वेरी इजी टू यूज और इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कि आपके पास तीन एडिशंस ऑफ विंडोज सर्वर्स होंगे, इसेंशियल, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर. Right? So what is the difference? So with essential edition, this is specifically made for an organization where you have like less than 50 users. अगर आपकी कंपनी में 50 से कम यूजर्स हैं, राइट, और आपको स्टिल आपको सर्वर रिक्वायर्ड है. सर्वर किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो मेल्स के लिए भी हो सकता है, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए भी हो सकता है, फाइल सर्वर भी हो सकता है. देन यू हैव टू यूज दिस विंडोज सर्वर एसेंशियल. अब विंडोज सर्वर एसेंशियल की एक प्रॉब्लम ये है दैट यू कैन हैव ओनली वन सर्वर. यू कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन वन सर्वर इन योर एनवायरनमेंट, and this is limited for 50 users only, right? So you can use Active Directory in it, you can make this as a your file server, right? Hyper-V इसके अंदर नहीं आता है, you can't use Hyper-V in it, right? So this is for basic use only. Now, what is the difference with Windows Server Standard? So Windows Server Standard is a full featured version or edition of Windows Server, right? It has all the functionalities that can be done in a Windows Server, but there is a limitation for Hyper-V, that with Windows Server Standard, you can only create 2 Hyper-V virtual machines. What that virtual machines are, we will discuss that in our next topics, right? But with Windows Server Standard, you can have only 2 virtual machines created in Windows Server Standard license. ऐसा नहीं है कि आप create कर नहीं सकते, but you need to have more licenses. ठीक है? So I have mentioned one thing, that this is effective if you have less than 10 servers. अगर आपके पास 10 से ज्यादा सर्वर हो जाते हैं, please don't go for Windows Server Standard. But if you have less than 10 servers, then this is applicable, or this one will be the beneficial thing. अभी आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा what I mean to say कि 10 सर्वर और 2 virtual machines may be complicated, right? Let's make this simplified after this. There is another version or then another addition of server that is called Windows Server Data Center. So with the data center, you don't have any limitation. This is the highest or high, basically the I would say the most expensive version of or addition of Windows Server, and within this you have like all the features. Microsoft के servers के अंदर जितने भी features हैं, वो सारे के सारे आपको इस edition में मिलेंगे. Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share, and subscribe for more future updates. Right? You can create unlimited virtual machine. You can create your own data center using Windows Server Data Center Edition.
right? So this is cost effective if you have more than 10 servers in your environment. अब मैं विंडोज सर्वर की बात भी कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे बोला मोर देन 10 सर्वर या लेस देन 10 सर्वर, व्हाट आई मीन, राइट? देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंपैरिजन. ये मैंने एडिशन की बात करी है. दिस इज आइडियल फॉर, दिस इज लाइसेंसिंग मॉडल, दिस इज रिक्वायरमेंट एंड दिस इज प्राइसिंग. ये चार्ट आपको बता देगा. डेटा सेंटर सबसे महंगा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वर्चुअल मशीन. सबसे पहले एनवायरनमेंट समझते हैं, ठीक है? सो लेट्स अज्यूम, let me let me take another color. Let's assume आप एक सर्वर लेके आते हो. सर्वर मतलब एक मशीन लेके आते हो आप, फिजिकल मशीन. YouTube link for what? Copy Raju? It is not available in YouTube today. This is a premium class, so it will be available on a portal only. Okay, sir. Yeah. So let's say आपने डेल का कोई सर्वर परचेज किया है. ये जो डेल का सर्वर परचेज किया ना, इस सर्वर परचेज करने से ये सर्वर नहीं बन जाता, पहली बात, ठीक है? सो आपने क्या किया, एक मशीन परचेज करी है, हार्डवेयर. लेट्स से ये जो सर्वर है इसके अंदर Xeon प्रोसेसर है और 8 कोर का प्रोसेसर. इट हैज 8 कोर्स इन इट, ठीक है? दिस इज 8 कोर प्रोसेसर. अब इस सर्वर के अंदर जो वो 64 GB रैम है, लेट्स अज्यूम, और इसके अंदर 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगी हुई है. जनरल केसेस में ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है? ये डेल का सर्वर है और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हार्डवेयर है ये सिर्फ. तो ये फिजिकल मशीन हुई. आज की डेट में हम ऐसा नहीं करते हैं. विंडोज सर्वर 2003 के केस में क्या होता था, जब आप एक सर्वर परचेज करते थे, डायरेक्टली आप उस सर्वर के अंदर विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर देते थे और उसको यूज करने लग जाते थे. जैसे अब आपको अगर नया सर्वर बनाना है तो आपको एक नई फिजिकल मशीन खरीदनी पड़ती थी, ठीक है? या आपको VMware यूज करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे हाइपर वी नहीं था. हाइपर वी आया विंडोज सर्वर 2008 R2 में, ठीक है? सो आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली क्रिएट्स वर्चुअल मशीन rather देन फिजिकल सर्वर. तो अब क्या करोगे आप, ये मैं आपको रियल लाइफ एनवायरनमेंट का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए. अगर आप भी अपने एनवायरनमेंट में सर्वर इंस्टॉल करने वाले हो, ट्राई टू फॉलो दिस स्टेप्स, ओके? और ट्राई टू फॉलो दिस सिनेरियो. आप आपने डेल का सर्वर परचेज किया, ठीक है? ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है. अब आप क्या करोगे, इस डेल के सर्वर के अंदर विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल करोगे. आपने क्या किया, विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल किया, ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, बस. अब इसके ऊपर आप कुछ नहीं करोगे. आपने विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल किया और इसके ऊपर आप हाइपर वी इंस्टॉल कर दोगे. आई विल टेल यू हाउ टू इंस्टॉल हाइपर वी, बस जस्ट आई एम टेलिंग यू द स्ट्रेटजी. आपने इसके ऊपर हाइपर वी इंस्टॉल किया. आफ्टर दैट यू विल क्रिएट वर्चुअल मशीन्स विद इन दिस सर्वर, राइट? यस, दिस इज इनबिल्ट, बट इट्स नॉट लाइक आपने विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर दिया तो हाइपर वी भी साथ में इंस्टॉल हो जाता है. दैट डजंट हैपन लाइक दिस. आपको वो इनेबल करना पड़ता है, ठीक है? सो you installed Hyper-V and after that you will create virtual machine. तो आप क्या करोगे, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, फिर एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, फिर एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे. आप कितनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं. अब कैसे पता चलेगा ये रिसोर्सेज प्लानिंग? अब मैंने आपको बोला 8 कोर प्रोसेसर है, ठीक है? अगर आप इन सारी वर्चुअल मशीन को एक एक प्रोसेसर भी देते हो तो ये तीन जो 6 मशीन है, ये 6 प्रोसेसर यूज कर रही हैं, मतलब 6 अलग अलग कोर्स यूज कर रही हैं, ठीक है? यू स्टिल हैव 2 कोर्स लेफ्ट, मतलब आप 2 वर्चुअल मशीन अभी भी बना सकते हो. यू हैव कैपेबिलिटीज. अब रैम 64 GB है, इसको मैं 8 GB दे देता हूँ, इसको भी 8 GB दे देता हूँ, इसको भी 8 GB, इसको भी 8 GB, इसको भी 8 GB, 8, इसको भी 8 GB. कितने GB रैम यूज हुई, 48 GB. आई स्टिल हैव 16 GB left with me. 16 GB, yes, I still have 16 GB left, right? So this way you are creating server. अब ये जो मैंने बोला कि 10 सर्वर आप बना सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वर्चुअल मशीन्स. अब इस एनवायरनमेंट में मैंने क्या किया हुआ है, 6 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं.
So I'm saying with Windows Server Standard, you can only create 2 Hyper-V machines. So basically क्या होता है, if you use Windows Server inside the Hyper-V, जो स्ट्रेटजी आप मैंने बताए वो अगर आप यूज करते हो, जैसे आपने Windows Server 2019 इंस्टॉल किया और उसके अंदर Hyper-V इंस्टॉल किया और उसके अंदर एक पहली वर्चुअल मशीन बनाई और दूसरी वर्चुअल मशीन बनाई, तो इन दोनों वर्चुअल मशीन के लिए जो लाइसेंस होगा, इनको एक्टिवेट करने के लिए वो सेम लाइसेंस यूज होगा जो आपने इसको दे रखा है। मतलब एक लाइसेंस से आप कितने सर्वर चला रहे हो? 2। ये आपको डेटा सेंटर स्टैंडर्ड लाइसेंस में अलाउड होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे Hyper-V के साथ कोई और रोल इंस्टॉल कर दिया, जैसे आपने मान लो फाइल सर्वर या प्रिंट सर्वर आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो वो लाइसेंस वेस्ट हो जाता है और आप वो लाइसेंस इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, आपको वो फिर 2 लाइसेंस काउंट होंगे ऐसे। मतलब आप जब आप एक स्टैंडर्ड लाइसेंस लेते हो, ठीक है, यू आर अलाउड टू मेक 2 सर्वर्स विद इट। बट अगर आप विंडोज सर्वर का डेटा सेंटर लाइसेंस यूज करते हो तो आपको ये लिमिट है ही नहीं, आप इसके अंदर चाहे 9000 सर्वर इंस्टॉल कर लो। अब 9000 सर्वर इंस्टॉल करने के लिए तो इतनी बड़ी मशीन आपके पास कहाँ से आएगी, इतने तो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट ने बोला हुआ है। सतीश जी, एक क्वेश्चन है। हम्म अगर आप बोल रहे हैं कि 2 यूज कर सकता है, जो हम्म बेस मशीन रहेगी तो वो कौन सा होगा तो लाइसेंस के बेस लिए? में वो सिर्फ Hyper-V का लाइसेंस चलेगा उसमें बस। ओके ओके ओके। हाँ, उसके लिए आपको मतलब जो लाइसेंस आपका स्टैंडर्ड का है ना, वो इंक्लूडेड ही होगा उसमें ही। ओके ओके। ठीक है, तो आप उसी लाइसेंस से आप जो वो 2 आपकी जो वर्चुअल मशीन है उनको आप लाइसेंस करवा सकते हो ठीक है ठीक है। ओके। एक्टिवेट में। ठीक है, अब आपके पास ये जो बाकी 2 मशीन्स हैं, अब आपके पास मैंने बोला कि 10 सर्वर आप बना सकते हो। अब मैंने ये क्यों बोला है, लेट्स कंटिन्यू और लेट्स कैलकुलेट दिस। पहली बात, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइसेंसिंग ऑफ विंडोज सर्वर। ये जो लाइसेंसिंग वाला जो टॉपिक होता है ना, वो मैंने आज तक कभी किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा हुआ है वैसे। ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता होता है, ठीक है, इंटरव्यू में लाइसेंसिंग का। और पढ़ाता है इसको कोई नहीं, मतलब मैं जब पढ़ रहा होता था तो मुझे भी नहीं पढ़ाया था किसी ने ये। और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे किसी भी दोस्तों को, इवन जो बहुत मेरे से जो सीनियर थे, उन्होंने भी इसको नहीं पढ़ा था कभी भी। लाइसेंसिंग के लिए मैंने खुद रिसर्च करी, सब कुछ देखा, क्योंकि लाइसेंसिंग के मेरे से इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड आई वाज लाइक क्लूलेस। मुझे नहीं समझ आता था कि लाइसेंसिंग कैसे काम करती है। ठीक है, बट इफ यू वांट टू बिकम अ आर्किटेक्ट, राइट, फॉर विंडोज, और इफ यू वांट टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स कि आपने किसी कंपनी के लिए सर्वर बिल्ड करके देने हैं, ठीक है, उनका इन्वायरमेंट आपने खुद बनाना है, तो आपको ये लाइसेंसिंग समझ आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आप कंपनी को बता नहीं सकते कि तेरा खर्चा कितना होने वाला है। ठीक है, सो विद विंडोज सर्वर लेट्स अंडरस्टैंड, जब आप लाइसेंस परचेज करते हो देयर विल बी वन बेस लाइसेंस एंड द बेस लाइसेंस फॉर, आप चाहे कोई भी यूज करो, चाहे स्टैंडर्ड यूज करो, चाहे डेटा सेंटर यूज करो, बेस लाइसेंस इज हमेशा 16 कोर के लिए होता है। कि अगर आपके पास आपका सर्वर जो है या आपकी जो फिजिकल मशीन है, अगर वो 16 कोर की है, उसका जो प्रोसेसर है 16 कोर और 1 सीपीयू, आपको पता है ये जो सर्वर्स आते हैं, जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रोसेसर लग सकते हैं, 4 प्रोसेसर तक भी देखे हैं मैंने। मतलब आपका जो सर्वर है उसके अंदर 4 अलग अलग प्रोसेसर लगा सकते हो आप ऐसे। 4 अलग अलग प्रोसेसर की जगह होती है, उसके अंदर आप 4 अलग अलग प्रोसेसर लगा सकते हो, और अगर हर एक प्रोसेसर 16 कोर का है तो आप लगा लो, मतलब 64 कोर्स यू कैन हैव इन अ सिंगल सर्वर बाय यूजिंग दिस। वैसे तो आपका जो जो Xeon प्रोसेसर आता है ये 32 कोर्स तक आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो 32 कोर का प्रोसेसर है और 4 प्रोसेसर की सॉकेट्स दे रखी हैं, ये सॉकेट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जहां पे आप फिजिकली प्रोसेसर को कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम पे। ठीक है, 4 अलग अलग प्रोसेसर तक आप यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप पे तो नहीं होता ना ऐसा कभी भी, डेस्कटॉप पे तो सिंगल एक ही प्रोसेसर हो सकता है, उसके अंदर सिर्फ कोर्स हो सकती हैं। सो द लाइसेंस आई एम टॉकिंग अबाउट 1 सॉकेट and 16 core. So you can have 16 core on single processor and you can have one license. अगर आप एक लाइसेंस परचेज करते हो, so that license will be valid for 16 core. अब मेरे पास अगर सर्वर 8 कोर का ही है, माइक्रोसॉफ्ट से आई डोंट केयर, आपको लाइसेंस 16 कोर का ही परचेज करना पड़ेगा। दिस इज द बेस लाइसेंस। ठीक है, एंड दिस इज द बेस रिक्वायरमेंट कि अगर आप लाइसेंस परचेज करते हो वो लाइसेंस 16 कोर के लिए होगा। सतीश जी, नाउ या ये अभी जो बता रहे लाइसेंस का, ये पहले से ऐसा ही है कि अभी अभी चेंज किया है? ये पहले से ही ऐसा है। ओके ओके। ठीक है, सो दिस इज फॉर 16 कोर।
Now if I have like 24 core processor, let's assume कि मेरे पास तो 24 core का है, 16 core से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा फिर? Then you can buy 2 core license. फिर आपके जो वो बेस लाइसेंस आपको एक हो गया 16 कोर का, फिर आप हर एक लाइसेंस 2 कोर के हिसाब से ले सकते हो। ये थोड़ा सस्ता होता है, मीन्स इट विल कोस्ट यू आई थिंक फ्यू $100, ठीक है? तो आप जो वो 2 कोर इस तरीके से लाइसेंस परचेज कर सकते हो। तो अगर आपके पास जैसे 24 कोर्स हैं, सो यू कैन गेट लाइक 4 कोर लाइसेंस ट्वाइस और 2 कोर लाइसेंस 4 टाइम्स। सो दैट इज अप टू यू कि आप लाइसेंसेस कैसे परचेज करते हो फिर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसेंसिंग की आप कैसे करोगे, ठीक है? सो अब मैंने बोला कि जो आपने लाइसेंस परचेज किया था 16 कोर का, ठीक है, वो आपने एलोकेट कर दिया, लेकिन अब आपके पास मशीन तो 2 बच गई। फिर आप क्या करोगे, जो विंडोज सर्वर का जो स्टैंडर्ड का लाइसेंस है, आप एक और लाइसेंस परचेज करोगे। दो एक लाइसेंस से आपका कितनी होगी, 2 सर्वर चल गए, 2 वर्चुअल मशीन चल गई, उनको आपने एक्टिवेट कर दिया, लाइसेंस कर दिया। अब आपके पास अगर 2 वर्चुअल मशीन और बनानी पड़ती है आपके पास, क्योंकि आपका सर्वर जो आपका फिजिकल मशीन है वो तो अलाउ कर रही है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर और रैम काफी है, मतलब आप 2 वर्चुअल मशीन और बना सकते हो। तो आपको एक और लाइसेंस परचेज करना है। जब आप दो एक और लाइसेंस परचेज करते हो स्टैंडर्ड का, फिर आप 2 वर्चुअल मशीन और बना सकते हो। फिर आप एक और लाइसेंस परचेज करते हो तो आप 2 और वर्चुअल मशीन बना सकते हो। सेम एज इट इज, आप एक और लाइसेंस परचेज करोगे, आप 2 वर्चुअल मशीन और बना सकते हो। तो एक लाइसेंस के अंदर आप कितनी वर्चुअल मशीन बना रहे हो, 2। So this is how you can create 8 virtual machines using 4 licenses, right? Now I said that it is cost effective if I have less than 10 servers or not more than 10 servers. Kyun? If you take a look about standard license, right? It is core based, as I said, it is core based license, and the price for a single license is $972. ये मेरे प्राइसिंग नहीं है, ये आई हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। इट कैन गेट चेंज्ड, आई कैन नॉट अश्योर यू कि ये 972 ही रहेगा, ठीक है? बेस्ड ऑन प्राइसिंग इट कैन गेट चेंज्ड, और ये इंडिया के अंदर अलग अलग हो सकता है, और इंडिया के अंदर जो ये प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग अपॉन आपके प्राइसिंग क्या चल रही हुई है, मतलब आपका जो रुपीस है उसकी डॉलर में कितनी वैल्यू है, ठीक है, या डॉलर की इंडिया में कितनी वैल्यू है। तो वो ये प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। मैंने यूएस का इसलिए लिया हुआ है बिकॉज इट विल बी सिमिलर, क्यों ये इतना फ्लक्चुएट नहीं होगा, ठीक है? सो 972, नाउ इफ यू कैलकुलेट, इफ आई हैव लाइक 4 लाइसेंसेस, if I calculate 972 by 4, how much it will be? It will be somewhere around 4500 or 4200 or 4300. I'm not, yeah, my math is not that strong. Let's calculate it. So it will be $3,888, right? तो मतलब अगर आपको 8 वर्चुअल मशीन्स बनानी है या 8 अलग अलग सर्वर्स बनाने हैं, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, $3,888, राइट? सो इजंट इट कॉस्ट इफेक्टिव? लेकिन अगर आप इसी की जगह एक डेटा सेंटर यूज करते हो, तो डेटा सेंटर लाइसेंसेस की जो लाइसेंस है उसकी प्राइस ही $6,155 है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट? बट अगर आप ये डेटा सेंटर का लाइसेंस यूज करते हो तो इसके अंदर ये वर्चुअल मशीन जैसे अलग अलग से लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक लाइसेंस आपने परचेज किया, दैट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 16 कोर्स, राइट? 16 कोर का एक सर्वर ले लो, उसके अंदर आप एक लाइसेंस परचेज कर लो डेटा सेंटर का, जितनी मर्जी वर्चुअल मशीन बनानी है बनाते रहो, ठीक है? अब अगर आपने 24 का लिया है, अगर आपका सर्वर 32 कोर प्रोसेसर का है, तो आप क्या करोगे, फिर अलग से पर कोर बेस्ड लाइसेंस, जैसे 2 कोर का या 4 कोर का या 8 कोर का लाइसेंस आप परचेज कर सकते हो अलग से, ठीक है? सो दिस वे यू कैन मैनेज योर लाइसेंस फीस। सो इफ यू हैव लाइक मोर देन 10 सर्वर्स, तो ये जो डेटा सेंटर वाला है ये बेनिफिशियल होता है, बिकॉज अगर आप ये 10 सर्वर अगर आप बिल्ड करते हो, 5 सर्वर अगर आप 5 लाइसेंस परचेज करते हो, तो ये $5,000 के आसपास चली जाती है बात, ठीक है? सो इट इज बेटर कि अगर आपके पास 10 सर्वर से ज्यादा हैं, तो आप जो वो स्टैंडर्ड नहीं यूज करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर अपने कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है? लिमिटेशंस क्या होती हैं वो हम बाद में देखते हैं। अगर आपके पास डेटा सेंटर है, तो डेटा सेंटर के अंदर आपको जो है वो हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है? जिसके अंदर आप वर्चुअल मशीन्स में हाई अवेलेबिलिटी, फिर बहुत से प्रीमियम फीचर्स आप यूज कर सकते हो। सो व्हाई वुडंट
you use data center if you have that type of infrastructure in your environment, ठीक है? So obviously you will use data center. Now there is a question कि ये आपने सिर्फ लाइसेंस सर्वर्स के लिए परचेज किया है, लेकिन इसके अलावा आपको क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। इट्स नॉट कि आपने सर्वर ही परचेज कर लिया और वो काम करने लग जाएगा। नो, you have to buy CAL as well. This is called CAL, Client Access Licenses. ये कहीं यूज नहीं होते हैं, दिस इज जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। आपके पास अगर आप सर्वर यूज कर रहे हो, जैसे आपने एक सर्वर परचेज किया एडी का, तो आपको या तो डिवाइस कैल या तो यूजर कैल परचेज करने पड़ते हैं। वो इतने महंगे नहीं होते हैं, दे विल बी लाइक $40, $20, $50 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंस यू आर परचेजिंग। वो इतने के होते हैं और वो नेगोशिएट भी होता है, जिससे आप लाइसेंस परचेज कर रहे हो, यू कैन बार्गेन कि आप इतने नंबर ऑफ लाइसेंस परचेज कर रहे हो, गिव अस अ डिस्काउंट, ठीक है? दे कैन गिव यू अ डिस्काउंट ऑन डिवाइस कैल एंड यूजर कैल। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरनमेंट कि आप यूजर कैल यूज करना चाहते हो या डिवाइस कैल यूज करना चाहते हो, बट दैट इज रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर में भी और स्टैंडर्ड में भी। लेकिन अगर आपके पास एसेंशियल है तो डिवाइस कैल की जरूरत नहीं होती है, यू डोंट नीड अ कैल, एंड द प्राइस ऑफ दिस इज $501। इट्स वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब जिस कंपनी के पास बेचारी के पास है ही 50 यूजर, तो बेसिकली वो कंपनी भी गरीब गरीब ही हुई ना, छोटी सी कंपनी है, तो वो इतने पैसे नहीं खर्चेगी, ठीक है? तो उनको जो वो कैल्स की जरूरत नहीं होती, और कोर्स का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे इसेंशियल के अंदर। जैसे मैंने आपको बोला, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर के अंदर कोर बेस्ड है, मतलब आपको बेस लाइसेंस 16 कोर का ही होना चाहिए। वो कोर्स काउंट करता है आपके सर्वर्स की कि कितनी कोर्स हैं, ठीक है, प्रोसेसर के अंदर। तो एसेंशियल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो सर्वर परचेज किया अगर वो 32 कोर का है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो एसेंशियल को, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्वर काउंट करेगा। और पहली बात तो ये है, 50 यूजर की डिवाइस के लिए 32 कोर वाला सर्वर कौन परचेज करेगा, है ना? ये तो मतलब वही बात होगी, इतना महंगा सर्वर नहीं यूज करेगा कोई भी। 32 कोर का जो सर्वर है वो कम से कम 4-5 लाख रुपए का होगा, तो इसको कोई परचेज नहीं करेगा, ठीक है? दिस इज जस्ट मतलब इसके अंदर आपको ना तो कैल्स की जरूरत है, ना तो आपको कोई स्पेशल सर्वर लाइसेंस की जरूरत है। जस्ट आपने $501 दे के सर्वर एसेंशियल परचेज किया एंड यू आर फ्री टू यूज इट। डिवाइस कैल एंड यूजर कैल, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम संदेश कि ये क्या होते हैं। डिवाइस कैल मींस whenever you purchase a device cal, right, this license is bound with that device। जैसे अगर मान लो मेरे एनवायरनमेंट में एक सर्वर, जैसे 2 सर्वर हैं, ठीक है, these are 2 servers I have, this is for AD and this is for the file servers I have, right? अब ये 2 सर्वर हैं, तो मैंने स्टैंडर्ड लाइसेंस परचेज किया हुआ एक, तो आपको पता ही है एक लाइसेंस के साथ मैं 2 सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है? अब मुझे डिवाइस कैल यूज करने पड़ेंगे। कैसे? अगर मेरे एनवायरनमेंट में मान लो 60 यूजर्स हैं, ठीक है, या 60 कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास कितने 60 कंप्यूटर्स हैं, और 60 मेरे पास कंप्यूटर हैं, मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास 100 यूजर्स हों। अब मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, मेरे पास 100 यूजर्स हैं लेकिन कंप्यूटर्स कितने हैं 60, ठीक है? अब ये जो 100 यूजर्स हैं ये शिफ्ट्स में काम करते हैं। जैसे एक बंदा आता है शिफ्ट में, वो कंप्यूटर पे लॉग इन करता है, फिर वो कंप्यूटर को लॉग ऑफ करके चला जाता है, दूसरा यूजर आता है, वो उसी कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करके अपना काम करता है। मतलब पीपल आर एक्चुअली शेयरिंग द कंप्यूटर्स। तो अगर मैं इस केस में अगर मैं डिवाइस कैल यूज करूंगा तो मुझे 60 कैल यूज करने पड़ेंगे, मतलब मेरी लाइसेंसिंग कॉस्ट जो वो कम हो जाती है, मुझे डिवाइस कैल यूज करने हैं इस केस में, ठीक है? ये आपका कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बेस पे। लेकिन दूसरा एनवायरनमेंट ये हो सकता है कि आपका जो यूजर है, एक यूजर जो वो 3-4 कंप्यूटर भी यूज कर सकता है। ऐसा भी होता है कई कंपनीज में कि आपके कंपनी में यूजर तो 60 हैं लेकिन उनके अंदर डिवाइसेस जो वो 100-200 हो सकती हैं। जैसे एक यूजर जो वो अपना लैपटॉप भी यूज करता है, एक कंप्यूटर भी यूज करता है, ठीक है, हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए टैबलेट या फिर फोन भी यूज करता हो। तो मतलब उसके अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ गई, नंबर ऑफ यूजर्स कम हो गए। तो इस केस में मैं डिवाइस लाइसेंस नहीं परचेज करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, यूजर कैल यूज करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स मेरे कम है। तो दिस इज हाउ यू मेंटेन द लाइसेंसिंग। कहाँ पे डिवाइस लाइसेंस यूज होने हैं, कहाँ पे यूजर लाइसेंसेस यूज होने हैं, ये आप डिसाइड करते हो, ठीक है?
ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूजर लाइसेंस परचेज करोगे तो ये नहीं कर सकते, या डिवाइस लाइसेंस यूज करते हो तो ये नहीं कर सकते। बोथ ऑफ आर वैलिड डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है। एक यूजर, जैसे एक कॉल सेंटर है मान लो, ठीक है, कॉल सेंटर के अंदर जो वो 100-150 यूजर जो वो काम करते हैं, लेकिन उनके पास कंप्यूटर तो कम ही होते हैं ना, क्योंकि कॉल सेंटर वाले जो वो शिफ्टों में काम करते हैं, ठीक है। अब उनको लाइसेंस तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, तो वो उस केस में क्या करेंगे, डिवाइस कैल यूज करेंगे रेदर देन यूजर कैल्स। गेटिंग इट? यस, दिस इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट पर्पज ओनली। माइक्रोसॉफ्ट कल को आपके कंपनी में आता है, वो बोलता है लाइसेंस दिखाओ अपने, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंसेस नहीं है, चाहे डिवाइस या यूजर्स, तो आप फंसोगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ये लाइसेंसेस ये दो $20-25 के होंगे, फिर वो आपको फाइन जो डालता है ना, वो लाखों रुपए में डालता है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि अपनी जो ऑडिटिंग है उसके लिए रेडी रहो, माइक्रोसॉफ्ट को चांस मत दो आपके ऊपर फाइन डालने का। और माइक्रोसॉफ्ट का फाइन जो वो कोई गवर्नमेंट बॉडी कंट्रोल नहीं करती। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला नहीं, तुमने तो हमारा लाइसेंसिंग का जो टर्म्स है वो ब्रीच करी है, यू हैव टू पे द फाइन, नहीं तो कोर्ट में चलो, ठीक है। सो ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कंपनी में, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिन्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी हैव टू मैनेज इट और वी हैव टू लर्न इट एज वेल, ठीक है। So that is why I wanted to, show this licensing things for you guys, so that you have a basic idea कि servers के अंदर licensing और वो editions कौन कौन से होते हैं और किस तरह का editions आप अपने environment में use कर सकते हो, ठीक है। और basically let me clarify the thing कि ये जो आपका ये environment होता है and all these things actually depending or I would say these are basics basically are basic डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट कि आपकी जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू वांट टू डिप्लॉय, based on that you will deploy the infrastructure whether you want to use standard or data center। अगर मेरी कंपनी में मान लो 400-500 सर्वर बनने हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्टैंडर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं डेटा सेंटर यूज करूंगा, ठीक है। सो दैट इज that is all about the licensing. And let me before we are above or sorry ahead of our time, but just wanted to clear few more things before we go. uh, so these are the addition comparison। ये स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर के अंदर है, तो डेटा सेंटर के अंदर अगर देखोगे तो स्टोरेज रेप्लिका इसमें भी है, लेकिन शील्डेड वर्चुअल मशीन्स का ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलता, और हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलता। दिस इज वैलिड विद डेटा सेंटर। अगेन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, वर्चुअल स्विचेस क्रिएट करना, ठीक है, और स्टैंडर्ड और जिसको हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड स्विचिंग मेंटेन करना, वो सारी की सारी डेटा सेंटर में एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड में वो ऑप्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज ये आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलती, इट इज अवेलेबल इन डेटा सेंटर। तो अगर आपके पास आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है इन टेक्नोलॉजीज की, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर डेटा सेंटर ओनली। सो दीज आर द comparisons। This PPT will be shared with you, or you can simply go to Microsoft site and you can compare these licenses and you will get to know all about this, right? Now let's go further. There are Windows Server deployment. Okay, we don't have much to discuss. So there are types of deployment. One is Windows Server Core. So within Core, we won't be having any graphical user interface। आप लोगों ने सुना होगा कि लिनक्स जो है बहुत सिक्योर होता है क्योंकि उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, उसमें तो सिर्फ कमांड्स होती हैं, वो ज़्यादा सिक्योर होता है। भाई विंडोज सर्वर का कोर देख लो एक बार, विंडोज सर्वर कोर इज एज मच एज सिक्योर्ड एज लिनक्स, ठीक है। सो विंडोज सर्वर कोर में भी आपको कोई स्टार्ट बटन नहीं मिलता, कोई माउस नहीं चलता उसमें, ऑल यू हैव टू डू इज विद कमांड्स, और उसमें डॉस की कमांड चलती हैं, और यू कैन यूज पावर शेल, राइट। सो विंडोज सर्वर ऑल्सो हैज दैट कैपेबिलिटीज, डिपेंडिंग कि लोगों को पता नहीं है, ठीक है, और लोग जो वो सर्वर कोर को यूज नहीं करना जानते, ठीक है, बट यू हैव द ऑप्शंस। Windows Server with desktop experience, it's the same deployment that you use most of the time। ज्यादातर लोग जो वो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस यूज करते हैं, क्योंकि अगर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं यूज किया तो विंडोज सर्वर को लोग बोलते हैं कि फिर क्या फायदा, लिनक्स ही यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। बिकॉज डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लोग जो विंडोज सर्वर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज यूजी टू यूज, ठीक है। स्टार्ट के अंदर क्लिक किया, सब सारे काम जो वो क्लिक्स पे होते हैं, सो दैट इज वाई पीपल प्रेफर विंडोज सर्वर्स। एंड
the basics for this is Windows desktop experience. So most of the scenario you will see desktop experience will be deployed, and there are multiple things which is basically supported with desktop experience only. Let's say Windows Server RDS, right? It is not applicable in Windows Server Core. RDS, we will understand what RDS means in later topics, but that is applicable with Windows Server desktop experience as well. Sorry, only. Okay, not not applicable in Windows Server Core, but it is secured, it is reliable, it is fast, right? But it is not as feature as rich as Windows Server with desktop experience. So these are the deployments, right? So if someone says कि Windows Server जो है वो secure नहीं होता है, tell them it is secure, but it is up to you how you want to secure it. ठीक है? It is as secure as Linux. That depends कि आप कैसे इसको secure करते हो. ठीक है? So there are minimum hardware and resource requirements. So with Windows Server Core, you need less memory. It requires less than 1 GB of RAM to get the server running. But if you are running Windows Server with desktop experience, you need at least 2 GB of RAM for Windows Server 2019. इससे कम रैम अगर आप यूज करते हो तो आपका सर्वर ढंग से काम नहीं करता. ठीक है, चल जाएगा बट काम नहीं करेगा. सो मिनिमम 2 GB ऑफ रैम इज रिक्वायर्ड फॉर विंडोज सर्वर 2019 इफ यू वांट टू यूज डेस्कटॉप एक्सपीरियंस. इसी की जगह अगर आपके पास विंडोज सर्वर 2012 R2 होता है, वो 1 GB के साथ चल जाता है. ठीक है, दैट इज मच मोर यू नो उसकी जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो विंडोज सर्वर 2019 से कम है. ठीक है, so that is all about your requirements and licensing and Windows Server additions and history. So I hope that was informational for you guys. So if you have any questions, you can ask. And I hope that it was a interesting session for you all. Hello. Yes. Yeah, hi sir. Actually, I have a little bit confusion between Windows Server Core and Windows Server with desktop experience. Like Windows Server Core is like you need not to install operating system on it. No, And that it's is not. It's not like that. okay. Can Windows. you please explain me a little bit? I'm a Yeah. little bit confused between Server Core and desktop. It is reliable. So let me tell you, Windows Okay. Server Core is basically a server without desktop or without graphical user interface. Okay. जैसे आप Windows Server Desktop Experience में क्या करते हो? You see that good beautiful screen. You enter your username, you enter your password, click Yeah, on yeah. login, and it will allow you to log in. And then you will see the desktop loads where you can click on start button and you can see all programs and all, right? So Okay. that is known as desktop experience. But with Okay. Windows Server Core, whenever you start your system, it will boot up to a command prompt. So if you Okay. want to, इट्स लाइक जैसे हमारे पास पहले MS DOS होती थी, वो ब्लैक हाँ, स्क्रीन वैसा कुछ yes, होगा. yes, ओके, सॉरी. यस, yes, आई गॉट इट. okay. So it's like just आपको जो भी कुछ करना है वो commands के through करना पड़ेगा. ओके. ठीक है? So if you want, if either in case you want to, change the IP address of that server, आपको commands के through ही करना पड़ेगा. जैसे आप Windows Server Desktop Experience में करते हो, राइट क्लिक करा, LAN कार्ड के प्रॉपर्टीज पे उसके अंदर IP एड्रेस असाइन किया, चल गया है ना. ओके. सर्वर कोर के अंदर ऐसा नहीं होता. You तो have to ये do यूज होता है विंडोज सर्वर कोर, हम एक्चुअली यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे विद डेस्कटॉप तो हम करते हैं, जैसे हम अगर जैसे हमें एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहा है, लैब बनानी है, तो हम विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस यूज करते हैं. सो ये विंडोज सर्वर कोर्स या कंपनीज में, मतलब जो बिग कंपनीज होती है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वो यूज करती हैं ये विंडोज. देखो, मैं आपको एनवायरनमेंट बताता हूँ. पहली बात तो 90% जो सर्वर्स होते हैं विंडोज के, वो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ यूज होते हैं. क्योंकि रीजन है ना, देखो विंडोज सर्वर को यूज करने का रीजन क्या है? बिकॉज इट इज यूजर फ्रेंडली, राइट? लिनक्स को यूज क्यों नहीं करते लोग? उसमें पता ही नहीं लगता कौन सी चीज कैसे करनी है. विंडोज सर्वर के अंदर इजी होता है ना सब कुछ. अगर वो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस हमने यूज नहीं करा तो विंडोज सर्वर यूज करने का कोई मतलब नहीं रहता. तो इसलिए लोग विंडोज सर्वर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ज्यादा यूज करते हैं. बट लेट्स से विंडोज सर्वर कोर को आप उस सर्वर के बजाय किसी दूसरे सर्वर से मैनेज कर सकते हो. इवन आप अपनी विंडोज 10 की मशीन से भी मैनेज कर सकते हो विंडोज सर्वर कोर को.
तो ऐसा नहीं है कि आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप उस डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को किसी दूसरे सर्वर से या दूसरी मशीन से मैनेज कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन योर सर्वर एंड द अदर मशीन। Okay. ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स दैट यू कैन यूज इन विंडोज सर्वर कोर? लेट्स से यू वांट टू क्रिएट अ हाइपर-वी सर्वर। Okay. अब हाइपर-वी सर्वर का जो प्राइमरी रोल है वो है वर्चुअल मशीन्स रन करना, उसके अंदर हमने ज्यादा कुछ तो करना नहीं होता। एक Right. बार आपने सर्वर इंस्टॉल किया, उसके अंदर आपने हाइपर-वी इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन्स बनानी है। तो वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए हाइपर-वी मैनेजर होता है, और वो हाइपर-वी मैनेजर आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज 10 की मशीन में भी कर सकते हो। तो इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज विंडोज सर्वर कोर। Okay. ठीक है। If you want to deploy Active Directory and you want to make a Active Directory server by default or want to make it secure, you can deploy Active Directory on Windows Server Core. और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं या ऐसे रोल्स होते हैं जो आप विंडोज सर्वर कोर में यूज कर सकते हो, जैसे DNS हो गया, DHCP हो गया, ठीक है, या वेब सर्विसेज हो गई, IaaS जो होता है, वो आप जो विंडोज सर्वर कोर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये ज्यादा फास्ट भी चलेगा और सिक्योर भी होगा। ठीक है। और ओके, बट इनको इसमें अगर हम इसमें विंडोज सर्वर कोर में करते हैं तो फिर वो हमें मतलब वो कमांड के थ्रू ही सब चीज हाँ, मैनेज करना पड़ेगा। यस, वो ओके। आपको कमांड्स के थ्रू करना पड़ेगा, बस फर्क ये है। ओके। उसका तरीका ये होता है, एक बार अपने सर्वर को सेटअप कर लो, ठीक है, मतलब उसके अंदर आपने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, ओके। उसको डोमेन में ज्वाइन कर लिया। डोमेन में ज्वाइन करने के बाद आप क्या करो, एक विंडोज 10 की मशीन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करो इस सर्वर के साथ। ठीक ओके। है। आपके पास टूल्स आते हैं जिनको बोला जाता है रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, या। RSET। आप RSET यूज करके आप इस सर्वर को कनेक्ट करोगे, देन आप उसको जो है वो यूज कर सकते हो। शकील, आई डोंट हैव दिस सर्वर कोर रनिंग इन माय एनवायरनमेंट, राइट, सो आई कैन नॉट शो दिस। ओके, अगर जैसे आप बोल रहे अब अगर हम क्लाइंट मशीन को कनेक्ट करते हैं इसके साथ तो फिर हमें उसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हम उसको डेस्कटॉप की तरह यूज कर सकते हैं, नहीं, मतलब वो फीचर। आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उस सर्वर का, बट आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे, जैसे आप रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको AD यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का जो कंसोल होता है हाँ वो हाँ हाँ मिल हाँ। जाएगा, ठीक है। ओके। हाइपर वी मैनेजर का कंसोल मिल जाएगा। वो कंसोल आप डायरेक्टली इस सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे, जो कुछ भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो एक्चुअली बैक एंड पे सर्वर पे चेंजेस हो रहे होंगे। सो दैट ओके। हैपेंस इन दैट वे। ओके। ठीक है। सो या। सर्वर कोर कैन बी मैनेज्ड, और ये सारी चीजें विंडोज यूज करती है, लिनक्स में ऐसी कोई चीज है नहीं। So that is how you want to manage your servers. Getting it? या, थैंक यू। Okay. All right. Any more questions, guys? So server core का और ये desktop experience का, I think it's clear, right? Yes, sir. यस सर। Okay. So yeah, we are ahead of our time. It's 11:24. It shouldn't be that late. So so let's stop this for today, and tomorrow we will discuss installation of Windows Server 2019. I will share the download link. I will share the basic things, and we will create a lab tomorrow. It will be more like a practical thing tomorrow. It was like a theory. आज हमने बहुत theory पढ़ ली है. Tomorrow we will discuss about the practical scenario of it. Okay? Sure, sure. Thank you so much. All थैंक right. यू। Thank you, everyone.